Hello, dear learners. Hope you are doing well and studying hard. So, as you all know, we are doing this series of PYQ for history paper for some time now. And yes, we have almost completed the papers from 2014 till 2022. Now, today comes the paper of 2023 February. Yes, and we are doing the shift 2. We have decided to do the shift 2 because usually there are no videos on another shift, that is the evening shift. So I thought, why don't we give it a try? So here comes the very first video of 2023 shift to February, that is the paper of 28th Feb. Okay, and yes, there is a surprise for you in this video also, so stay tuned. Hello learners, so here I am, your learner and your teacher. Okay, yes, so here we are going to start with the video very fast. Without wasting much of your time, let's get started. Alara, the great teacher of Buddha, belonged to which tribe? So here is the question on Buddhism, and the question is about the teacher of Buddha who helped him attain the enlightenment. So we have the answer option 2, Kalamas of the Kesaputta. Kalamas of the Kesaputta. Okay, there were two teachers who helped Buddha to attain the enlightenment, and according to Kalma Sutta, the Buddha visited Kesaputta and was asked by the Kalmas how to distinguish between the true and the false teachings. Okay, and he also encouraged them to cultivate qualities such as kindness, compassion and equanimity, and to develop their own wisdom. Buddha taught the Kalmas to evaluate based on the effects on individuals and society. मतलब दोनों ने एक दूसरे को सिखाया, बुद्धा ने भी सिखाया एंड उन कलमास ने भी बुद्धा को सिखाया. ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Which philosopher of India propounded the theory of Vishishta Advaita? Philosophy of Vishishta Advaita. Theory of, okay, philosophy. तो who is the correct answer? रामानुचार्य. रामानुचार्य ने ही हिंदू फिलोसोफर है, इन्होंने ही विशिष्ट अद्वैता को स्प्रेड किया है. ओके, which is a school of Vedanta and that combines the monistic ideals of Advaita Vedanta. ठीक है, इसमें क्या बोलते हैं कि द अल्टीमेट रियलिटी, व्हाट इज अल्टीमेट रियलिटी? ब्राह्मण is not just an impersonal and formless entity but also has attributes and qualities that are inseparable. Okay, he believed in the soul और जीवात्मा. एंड विशिष्ट अद्वैता की ओवरऑल फिलोसफी क्या आती है कि मोनोड्यूअलिज्म और नॉन ड्यूअलिज्म में बिलीव करते थे, एक ही भगवान, वन गॉड. ओके, and it also influenced many religious practices and traditions of Hinduism later. Next question. The critical edition of Mahabharata project was led by general editor by V.S. Suktankar. Option 3, V.S. Suktankar. Okay, V.S. Suktankar. So who was he? An Indian scholar of Sanskrit and Indology. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे हम. Question number 4. Gandharaditya was who was Gandharaditya? He was a Chola king. Okay, Chola king है. There is the complete chronology of Chola dynasty. तो उसमें आते हैं गंधारादित्य and he was before राजराजा. राजराजा के फादर का नाम उत्तमा होता है and उनके पहले आते हैं गंधारादित्य. Okay, was a reluctant monarch and focused more on religious work. And the Tondai Mandalam continued to be occupied by the Rashtrakut and Gandharaditya did not seem to have made any attempt. Basically religious थे काफ़ी ज़्यादा and he was also known as, इन्हें एक नाम भी दिया गया है, मरकी एलन दारुलीना देवा. ओके, ये उन्हें नाम दिया है. द किंग हु वॉज प्लीज टू गो टू वेस्ट. मतलब ऐसा कुछ एग्जैक्ट मीनिंग इसका पता नहीं है, बस उन्हें ये टर्म दिया गया है. जस्ट कीप दिस इन माइंड. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ दिस इज नॉट अ जैन टेक्स्ट? सो नाउ वी हैव टू नो द जैन टेक्स्ट एंड इसमें से कौन सा नहीं है पूछा है. अ लिटिल बिट डिफिकल्ट क्वेश्चन बट स्टिल आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4, यमका. ओके, all three are the Jaina text. Nishita Sutra, Tatvarda Digama Sutra and Abhidhana Chintamani. ये तीनों भी है जैना टेक्स्ट एक्सेप्ट यमका.
is a Buddhist text that contains a series of question and answer related to various topics including Buddhist philosophy and ethics. Okay, किसने लिखा है यमका को? मोगलाना. Who is the author of यमका? मोगलाना. Okay, he is the author of यमका and it is part of अभिधम्म पिटका. चलिए बाकी के भी देख लेते हैं, जैसे निशित सूत्र, कलेक्शन ऑफ एफ्रोफिज्म्स दैट प्रोवाइड इथिकल गाइडेंस टू द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म, एंड ये कुंदा ने लिखा हुआ है निशित सूत्र. देन तत्वर्दिगम सूत्र, इट इज बाय उमास्वती जैन फिलोसोफर, एंड अभिधम्म चिंतामणि हेमचंद्र. अभिधम्म चिंतामणि इज अ वेरी फेमस बुक रिटन बाय हेमचंद्र सूरी. ओके, बुक विच हैज़ फिलोसॉफी, कॉस्मोलॉजी एंड मिथोलॉजी, तीनों भी होते हैं ये बुक में. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फाउंडर ऑफ द कर्दमका डायनेस्टी? हु इज द फाउंडर ऑफ कर्दमका डायनेस्टी? चाष्टान. ऑप्शन 1 चाष्टान. सो बाय द वे, कर्दमका डायनेस्टी, अ डायनेस्टी ऑफ वेस्टर्न satraps who ruled in western and central India from 1st century BC to 4th century AD. Okay, Chashtana was the founder of the dynasty and is believed to have ruled from 78 to 130 CE और AD. ठीक है, और हमें ये कैसे पता चलता है? फ्रॉम द इंस्क्रिप्शन इन द जूनागढ़ रॉक. जो जूनागढ़ रॉक इंस्क्रिप्शन है विच वॉज कार्व्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हिज ग्रैंडसन रुद्रदमन. चाष्टान वॉज ग्रैंड फादर ऑफ रुद्रदमन 1. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. जीना प्रभु सूरी इन हिज विविध त्रितोकल्प इंक्लूड अ सेक्शन ऑन द होली सिटी ऑफ मथुरा. ऑप्शन 3 मथुरा. ओके, जीना प्रभु सूरी, उनकी बुक का नाम क्या है? विविध तीर्थकल्प. विविध तीर्थकल्प is a Jain text, describes various holy places and pilgrimage sites in India. ओके, एंड इसी में मथुरा के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है on the history, mythology and significance of various temple shrines and other holy places in the city. Okay, चलिए. And one more thing, yes, वहाँ पर जो दिगंबर जैन टेम्पल है, श्वेतांबर जैन टेम्पल है, एंड द कैलाश मंदिर विच आर प्रेजेंट इन मथुरा, दे आर ऑल्सो मेंशन्ड इन दिस. नेक्स्ट क्वेश्चन. किंग पारा इज एसोसिएटेड विद द किंगडम ऑफ कोसला. ओके, कोसाला. बेसिकली किंग पारा के ऊपर जो शिफ्ट 1 था उसमें भी क्वेश्चन है. Yes, I haven't discussed shift 1 with you, but I have solved it. So, shift 1 में भी दिया हुआ था King Para, who has performed the Ashwamedha sacrifice. So, Kosala, King Para was the legendary king. इनके बारे में कहाँ मेंशन किया गया है? जटका टेल्स में, ऑल्सो रामायण, इन दोनों में उनके मेंशन किया गया है. एंड ही वॉज नोन फॉर हिज ब्रेवरी, जेन्योरोसिटी एंड विजडम. ओके, वन मोर थिंग. किंग पारा इज मेंशन्ड एज द फादर ऑफ क्वीन कैकेयी. कैकेयी के फादर बोलकर मेंशन किया गया है. ठीक है, हु वाज कैकेयी? स्टेप मदर ऑफ राम एंड वाइफ ऑफ किंग दशरथ. थर्ड वाइफ ऑफ किंग, सेकेंड वाइफ ऑफ किंग दशरथ. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन. कॉपी ऑफ विच अशोकन रॉक एडिक्ट इज फाउंड इंग्रेव्ड ऑन अ बाउल. ओके, बाउल के ऊपर इंग्रेव्ड है. इट इज ऑप्शन 2 7th मेजर रॉक एडिक्ट. 7th मेजर रॉक एडिक्ट. ओके, बाय द वे 7th मेजर रॉक एडिक्ट में क्या दिया गया है? टॉलरेशन के बारे में बात की गई है. सो द 7th मेजर रॉक एडिक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन एडिक्ट्स एंड इट कंटेन्स इंपॉर्टेंट डिटेल्स अबाउट हिज पॉलिसी. हुज पॉलिसी? अशोकास पॉलिसी ऑन बुद्धिज्म एंड एनिमल वेलफेयर. ओके, सो इसमें उन्होंने बुद्धिज्म को प्रमोट किया है, प्रमोटेड द धम्मा, एंड उन्होंने ये भी बोला गया है कि प्रोटेक्शन ऑफ सर्टन एनिमल्स लाइक काउज, हॉर्सेज, एलिफेंट्स, एंड बैन द किलिंग ऑन फेस्टिवल्स. एंड वन मोर थी, देयर वॉज वेटरनरी हॉस्पिटल ऑल्सो एट द टाइम ऑफ अशोका. उसका भी मेंशन किया गया है 7th मेजर रॉक एडिक्ट में. एंड येस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट्स 13th मेजर रॉक एडिक्ट के बारे में क्या फेमस है. नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द बुद्धिस्ट टेक्स्ट दैट शोज कास्ट वॉज नॉट रिजिडली टाइड टू अ क्राफ्ट. कास्ट वॉज नॉट रिजिडली टाइड, बांधा हुआ नहीं है, टू अ क्राफ्ट. इट इज ऑप्शन 4 दस ब्राह्मण जतका. दस ब्राह्मण जतका. ओके, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ स्टोरीज जो किसमें प्रेजेंट है? खुदका निकाया अ पाली कैनॉन विच इज़ प्राइमरी स्क्रिप्चर ऑफ थेरावेदा बुद्धिज्म. ठीक है,
इसमें क्या दिया गया है, इट इज़ वन ऑफ द जटका टेल्स, अ ग्रुप ऑफ ब्राह्मण्स आर पोर्ट्रेट एज हैविंग नो पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन और क्राफ्ट. ओके, बिकॉज पहले कैसे ऑक्यूपेशंस यूजुअली कैसे मेंशन किया जाता था, बेस्ड ऑन द कास्ट, जो वो काम करते थे वही उनकी कास्ट भी बन जाती थी. ओके, सो नाउ वी विल मूव फॉर द yes we will move further now. Who wrote the book चतुःशतिका? चतुःशतिका किसने लिखा है ये बुक? आर्यदेव. ऑप्शन 1 आर्यदेव ने लिखी बुक है. ओके, चतुःशतिका यानी कि 400 वर्सेस ऑन द योगिक डीड्स ऑफ बोधिसत्व. ये बुक को और एक नाम क्या है? 400 वर्सेस ऑन द योगिक डीड ऑफ बोधि सत्व. ओके, इज एट्रिब्यूटेड टू इंडियन बुद्धिस्ट फिलोसोफर आर्यदेव. कौन थे आर्यदेव? डिसाइपल ऑफ नागार्जुन, एंड इज कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिलोसोफर ऑफ महायान बुद्धिज्म. ओके, महायान बुद्धिज्म से एसोसिएटेड है. सो 2nd सेंचुरी CE में इनका बर्थ होता है एंड बिलीव टू लिव एट द टाइम ऑफ नागार्जुना. ठीक है, बेसिकली इसमें क्या दिया गया है ये बुक में? फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ महायान बुद्धिज्म, लाइक द प्रैक्टिस ऑफ बोधिसत्व, द आइडियल ऑफ अटेनिंग इनलाइटनमेंट फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द हथनोरा स्पेसिमेन बिलोंग्स टू होमो इरेक्टस. ऑप्शन 4. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द ओडाई एंड हथनोरा. हथनोरा कहाँ आता है? मध्य प्रदेश में आता है. सो नर्मदा वैली के पास में. हथनोरा फॉसिल डिस्कवर्ड इन 1983. इट इज़ अ पार्शियल स्कल ऑफ एन एक्सटिंक्ट होमिनिन, जिसका नाम क्या है? अ मेल होमो इरेक्टस. ठीक है, इसके फीचर्स भी बताया गया है एंड इसे बोला जाता है वन ऑफ द ओल्डेस्ट होमो इरेक्टस फॉसिल फाउंड इन इंडिया. ओके, वन ऑफ द ओल्डेस्ट. और सेकेंड ओल्डेस्ट कौन सा है? ओडाई. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द आर्कियोलॉजिकल साइट ऑफ उत्तर बेनी विच yielded अर्ली पेलोलिथिक आर्टिक्राफ्ट्स इज लोकेटेड इन जम्मू. उत्तर बेनी कहाँ प्रेजेंट है? ऑप्शन 1 जम्मू. ओके, अर्ली पेलोलिथिक आर्टिफैक्ट्स वहाँ पर मिलते हैं. सो इट इज़ लोकेटेड इन जम्मू. द मॉडर्न फेज ऑफ पेलियोलिथिक स्टडीज जो 1930 में स्टार्ट हुई, ये तब डिस्कवर किया गया. ओके, सो इसमें क्या बोला गया था? द स्टोन एज कल्चरल सिक्वेंस ऑफ जम्मू रीजन फॉल्स ऑन द सेम लाइन्स एज द पेबल टूल ट्रेडिशन एज एस्टैब्लिश्ड ऑफ सोन कल्चर. सोन कल्चर कहाँ से है? पाकिस्तान से बिलोंग करता है. एंड बेयास वैली इन हिमाचल प्रदेश. ओके, सो द स्टोन पेबल टूल्स नोन एज सोन कल्चर वाइड स्प्रेड इन जम्मू. कहाँ पर मिलते हैं ये? उत्तर बेनी में मिलते हैं स्टोन पेबल टूल्स, जो अर्ली पेलियोलिथिक के टाइम पर प्रेजेंट थे. एंड समथिंग 2.8 to 5 million years ago, 0.5 million years ago, 2.8 to 0.5 million years ago. Okay, 2.5 to 0.5 million years ago वहाँ पर ये अर्ली पेलोलिथिक टूल्स आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं. एंड शिवालिक बेल्ट में भी ये आर्टिफैक्ट्स काफ़ी मिलेंगे, जो जम्मू टू कांगड़ा, बेसिकली हिमाचल प्रदेश वाला रीजन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. स्टडीज ऑन द दिद्वाना लेक वेर कंडक्टेड बाय ऑप्शन 2 गुरदीप सिंह. गुरदीप सिंह जो पेलिनोलॉजिकल स्टडी ऑफ 3 लेक्स ऑफ राजस्थान, जो 1971 में उन्होंने स्टडी की थी अबाउट 3 लेक्स इन राजस्थान. एंड उससे पता चलता है कि पहले वहाँ जो डेजर्ट एरिया था, पहले वहाँ पानी था. ओके, विच वेर द 3 लेक्स? वी विल राइट इट. फर्स्ट वॉज दिंदवाना लेक, देन सांबर आती है, सांबर लेक, एंड देन लुंकसर जो लुंकर अंसार. यस, बारिश चल रही है हमारे यहाँ एंड दैट्स वाई आवाज़ें आ रही है. सो ये स्टडी मिलकर की गई थी बाय इंजेल इट एंड गुरदीप सिंह. ओके, स्टडी वॉज इन 1971 बाय गुरदीप सिंह.
The first group led by Gurdeep Singh initially proposed good climatic conditions during flourishing Harappan phase, जो बाद में जाकर ड्राई हो जाती है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. बेसिकली हाइपोथेसिस थे कि वहाँ की लेक्स क्यों ड्राई हो गई. Which leader was instrumental in getting the smuggled footage of Indian National Army for a film on नेताजी सुभाष चंद्र बोस. कौन थे इसमें? ऑप्शन 3 सरदार वल्लभ भाई पटेल. Yes, he was instrumental. My specs might be disturbing you. So Sardar Vallabhbhai Patel was instrumental in smuggling the footage of INA for a film on Netaji Subhash Chandra Bose. Okay. Next question. And ये मूवी कब आती है? 1952 में आती है. 1952 में ये मूवी आई. Next question. Which of the following Portuguese Roman Catholic missionary did notable work in the field of opening some elementary schools and some orphanages? किसने किया था ये? Option 2 Robert de Nobile. Robert de Nobile, okay, was a Portuguese Jesuit missionary who worked in India during 17th century. And उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा वर्क किया था. कहाँ पर? तमिलनाडु, in the state of तमिलनाडु. Okay, he arrived in India in 1605 and spent several years studying Tamil and local customs. And then he also made efforts to translate Christian text into Tamil. जो बाइबल वगैरह है उन्होंने उसे तमिल में ट्रांसलेट करने की भी कोशिश की. He also opened several elementary schools and orphanages. ओके, एंड इसी से उन्होंने सपोर्ट भी गेन किया था बाकी लोकल पीपल का एंड रूलर्स का. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु हेल्प मोनियर विलियम्स इन प्रिपरेशन फॉर हिज संस्कृत इंग्लिश डिक्शनरी बिफोर लिविंग फॉर इंग्लैंड टू बिकम अ बैरिस्टर? हु हेल्प? ऑप्शन 3 श्याम जी कृष्ण वर्मा. श्याम जी कृष्ण वर्मा जो इंडिया महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं. ओके, ही स्टडीड इन लिविंगस्टन कॉलेज एंड यही हेल्प करते हैं टू prepare a Sanskrit English dictionary. किसे? Monier Williams. He was a close friend and supporter of Monier Williams and helped him. So Shyamji Krishna Verma was also instrumental in establishing one more thing, Indian House in London. Yes, उन्होंने फिर Indian Home Rule Society भी स्टार्ट की थी लंदन में 1920 में, which aimed to promote Indian self rule. Okay. There is one more thing. Let me know in the comments. श्यामजी कृष्ण वर्मा का न्यूज़पेपर का नाम क्या था? It is very famous newspaper. So please let me know. Next question. Question number 18. The Anand Math of Bankim Chandra Chattopadhyay deals with. आनंद मठ किससे डील करता है? सन्यासी रिवोल्ट. ऑप्शन 3 सन्यासी रिवोल्ट. ओके. हु वॉज बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय? ही वॉज नॉवेलिस्ट. बंगाली नॉवेल्स लिखते थे, राइटर थे बेसिकली. और उन्होंने ये कब लिखी थी? 1882 में लिखी थी. इन द ईयर आनंद मठ वॉज रिटन इन 1882. ओके. सो उन्होंने ये The novel portrays the struggle of a group of Hindu monks who rebel against the British rule. सन्यासी यानी कि जो monks रहते हैं उन्हें सन्यासी बोलते हैं. So this novel represents the rebel. Okay. This novel is also known for popularizing the song Vande Mataram. We all know Bankim Chandra Chattopadhyay was the writer of Vande Mataram song. Okay. Okay. So उन्होंने वंदे मातरम सॉन्ग भी लिखा है जो इसी नॉवेल में है, आनंद मठ में. एंड आनंद मठ वॉज द फर्स्ट नॉवेल टू बी रिटन इन बंगाली. नोट डाउन दिस पॉइंट ऑल्सो. द नॉवेल हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इन टू इंग्लिश, हिंदी एंड मराठी ऑल्सो लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन. G.D. Birla, as a legislator in 1926-27, fought the election on the ticket of which party? किस पार्टी से? नेशनलिस्ट पार्टी. बहुत लोगों को लगा होगा द इंडियन नेशनल कांग्रेस, बट नो, इट इज़ नेशनलिस्ट पार्टी. सो हु वाज G.D. बिरला? ही वाज अ इंडस्ट्रियलिस्ट एंड अ क्लोज एसोसिएट ऑफ महात्मा गांधी. बहुत लोगों को पता होगा कि वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे. सो ही वॉज ऑल्सो मेंबर ऑफ INC. बट इन 1926 ही वॉज इलेक्टेड टू सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ ब्रिटिश इंडिया. Okay, he contested from the Calcutta South constituency as a candidate of Nationalist Party, not INC, but Nationalist Party, and won the seat. And later वो और एक जो गांधी जी की सभा थी, संघ था, उसके फाउंडर भी थे along with गांधी जी. It is हरिजन सेवक संघ of 1932. हरिजन सेवक संघ. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who started the Satyaprakash in Gujarati in 1852 to advocate widow remarriage? It is option 2. करसोनदास मूलजी. ओके, करसोनदास मूलजी. गुजराती में लिखी गई सत्य प्रकाश एक नॉवेल है. किसने स्टार्ट की थी? करसोनदास जी मूलजी.
was a social reformer from Gujarat who lived in 19th century, 1823 to 1883. Yes, correct. So he was strong advocate for women's right and worked to promote widow remarriage and which was considered taboo at that time. मतलब कि विडो रिमैरिज नहीं हुआ करती थी उस टाइम पर, बट ही फॉट फॉर इट इन हिज बुक सत्यप्रकाश, सॉरी न्यूज़पेपर था सत्यप्रकाश. ओके, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म एंड टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इश्यूज फेस्ड बाय द वुमेन एंड अदर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स. सो इन्होंने और किसके साथ काम किया? ज्योतिबा फुले एंड महात्मा गांधी, टू प्रमोट सोशल चेंज. एंड वन मोर थिंग, इन्होंने आर्य समाज भी एस्टैब्लिश करने में हेल्प की थी गुजरात में. इन गुजरात आर्य समाज वॉज सेट अप बिकॉज ऑफ हिज कॉन्ट्रीब्यूशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेरोज एंड द खैरवार्स ऑफ पलामू रोज अंडर हुज लीडरशिप इन द रिवोल्ट ऑफ 1857. सो ये है ऑप्शन 4, पीताम्बर शाही. अंडर पीताम्बर शाही द चेरोज एंड खैरवार्स ऑफ पलामू रोज अंडर हिज लीडरशिप. ओके, रिवोल्ट ऑफ 1857 जिसे सिपाही मेटेनी या इंडियाज फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है. तो ये जो चेरोज और खैरवार्स थे, इन्होंने रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किया था. एंड दे ऑल्सो अटैक सेवरल ब्रिटिश ओन्ड प्रॉपर्टीज एंड डिस्ट्रॉयड द टेलीग्राफ लाइन्स, ओके, टू डिस्टर्ब द कम्युनिकेशन. बट लेटर पीताम्बर शाही को कैप्चर कर दिया गया था एंड ही वॉज हैंग्ड इन 1858. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. हु रोट द बुक हिंदुत्व? वी.डी. सावरकर, वेरी फेमस वी.डी. सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर. ओके, इन्होंने लिखी है बुक हिंदुत्व. हु इज हिंदू? हु इज अ हिंदू? हिंदुत्व का पूरा नाम क्या है? हिंदुत्व, हु इज अ हिंदू. आगे क्वेश्चन मार्क. ओके, is a book that outlines the concept of Hindutva and provides an ideological framework for Hindu nationalism in India. It is a very nice book by the way, बहुत अच्छी बुक है. बेसिकली जो अभी चल रहा है ना सनातन हिंदू धर्म एंड ऑल, उस टाइम के लिए ये बुक पढ़ना बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट इज़ हेल्पफुल. Otherwise, I wouldn't comment on anything, such topics, because it is very controversial. But yes, this book is really good. It is considered a seminal work in the development of Hindutva ideology. Okay? यहाँ पर हिंदू जो वर्ड है ये क्यों मेंशन किया गया है? आर्ग्यूज दैट हिंदूज कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट नेशन विथ अ शेयर्ड कल्चरल, हिस्टोरिकल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज. ओके, इसमें उन्होंने हिंदू राष्ट्र, हिंदू नेशन जो है ना वो एक आइडियोलॉजी, उसके बारे में बात की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ द चौथ इनकम? ओके, विच वॉज नॉट? नागभाग. ऑप्शन 4, नागभाग वॉज नॉट अ पार्ट. चौथ क्या होता था? यूजुअली 1/4 जो बोला जाता है. इट वॉज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द टेरिटरीज बाय मराठा रूलर्स. ओके, मराठा रूलर्स जो थे वो टेरिटरीज जो उनके अंडर थी वहाँ से वो चौथ कलेक्ट करते थे एज अ फॉर्म ऑफ रेवेन्यू. And it was tax levied in certain regions. So चौथ revenue was mainly collected from non-agricultural activities. ये भी बात ध्यान में रखो, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ जैसे कि ट्रेड हो गया या माइनिंग, ऐसी जो एक्टिविटीज़ थी उससे लिया जाता था. सो द रेवेन्यू सोर्सेज मेंशन्ड जो बप्पी है, सहोत्रा, नादगोंडा, ये पार्ट थे चौथ के. बट नागभागा वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ चौथ. बप्पी वॉज अ टैक्स लेविड ऑन मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स थ्रू अ स्पेसिफिक टेरिटरी. बप्पी यानी कि जो मर्चेंट्स के ऊपर लगता है. ओके, देन सहोत्रा, इट वॉज लेविड ऑन द सेल एंड परचेस ऑफ हॉर्सेस, एलिफेंट्स एंड अदर डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. सहोत्रा वॉज ऑन एनिमल्स. ओके, बप्ती मर्चेंट्स. एंड नादगोंडा, इट वॉज ऑन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर. ओके, और लैंड ओनरशिप. प्रॉपर्टी पर था नादगोंडा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, द न्यू रेजिमेंट ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA raised at Taiping in Malay in September 1943 was called by soldiers of that brigade as the Subhash Brigade. ओके, सुभाष ब्रिगेड बोला जाता था. देयर वॉज ऑल्सो प्रेजेंस ऑफ रानी झांसी ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड, ये सब भी थे उसमें.
बट जो INA एट तेपिंग मलय पेनिनसुला में जो बनती है 1943 में, उसे सोल्जर्स ने नाम दिया था सुभाष ब्रिगेड. ओके, सो इट वॉज ड्यू टू द लीडर सुभाष चंद्र बोस, बेस्ड ऑन हिज नेम. ठीक है. द ब्रिगेड वॉज ऑल्सो नोन एज द फर्स्ट ब्रिगेड और द मलयन ब्रिगेड. ये फर्स्ट ब्रिगेड भी थी. एंड द सुभाष ब्रिगेड प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द INA सब्सिक्वेंट कैंपेन्स इन बर्मा एंड इंडिया, जो फेल हो जाता है इन्वेजन 1944 में. ठीक है. और इसे आफ्टर द वर्ल्ड वॉर डिसबैंड भी कर दिया गया था. एंड हाउएवर द INA's legacy and the role of Subhash Chandra Bose in India's independence struggle was unmatched. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Who is the father of land settlement in northern India? Option 4, Martinsburg. Not a usual question. Martinsburg was a British colonial administrator who served as the settlement officer for the northwestern provinces of British India. He played a key role in the development of जमींदारी सिस्टम. Martinsburg, हमारे बुक्स में यूजुअली इनका नाम नहीं है ज़्यादा, बट येस उनके अंडर जमींदारी सिस्टम था. उन्होंने काफ़ी ज़्यादा उसमें मतलब कंट्रीब्यूट किया है, विच एम टू ब्रिंग मोर ऑर्डर एंड इफिशिएंसी टू द कलेक्शन ऑफ लैंड और रेवेन्यू. जो जमींदारी सिस्टम को उन्होंने एक तरह से ठीक किया. सो लार्ज लैंड ओनर्स नोन एज जमींदार्स वे गिवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कलेक्टिंग लैंड रेवेन्यू फ्रॉम स्मॉलर फार्मर्स एंड पीजेंट्स. ये क्या है? जमींदारी सिस्टम. एंड ये उन्होंने डेवलप किया. ठीक है, मार्टिन्सबर्ग ने. देयरफॉर ही इज नोन एज द फादर ऑफ लैंड सेटलमेंट इन नॉर्दर्न इंडिया. एंड येस वन मोर थिंग, रोहितेवारी सेटलमेंट जो साउथ इंडिया में आती है, महाराष्ट्र पार्ट में, उसमें भी इनका काफ़ी ज़्यादा रोल अच्छा है. मतलब ही प्लेड इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ रोहितेवारी सिस्टम. ओके. Thus, his work on land settlement and revenue collection had a significant impact on the development of Indian economy and society during the colonial period. Therefore, he is known as the father of land settlement in northern India. Okay. Next question. The first jute spinning mill in India was established at Rishra in 1855 by whom? रिश्रा में फर्स्ट जूट स्पिनिंग मिल एस्टैब्लिश होती है. तो ये किसने एस्टैब्लिश किया था? जॉर्ज ऑकलैंड. ओके. सो इट इज़ द फर्स्ट जूट स्पिनिंग मिल. 1 minute. Yes. So the first jute spinning mill जॉर्ज ऑकलैंड ने एस्टैब्लिश किया था एट रिश्रा इन 1855. ओके, कोलकाता वेस्ट बंगाल में. सो इट इज़ द मिल वॉज फाउंडेड बाय ब्रिटिश बिजनेसमैन. कौन थे ये? ब्रिटिश बिजनेसमैन थे जॉर्ज ऑकलैंड, हु वॉज एन एजेंट ऑफ दंडी बेस्ड जूट मैन्युफैक्चरर. ओके, विद द सपोर्ट ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन्होंने ये स्पिनिंग मिल एस्टैब्लिश की थी. सो इसका रॉ मटेरियल क्यों यूज़ किया जाता था? टू प्रोड्यूस गुड्स इंक्लूडिंग रोप्स, ट्वाइंस एंड सैक्स. जो थैला होता है ना जूट का, रस्सी, वो सब बनाने के लिए. ओके. सो द इंडस्ट्री प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बंगाल एंड अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. ओके. मोस्टली एम्प्लॉयमेंट, कोई भी इंडस्ट्री आती है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है. दैट इज़ व्हाट द मेन कंट्रीब्यूशन. एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी फॉर थाउजेंड्स ऑफ पीपल. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट द पार्ट ऑफ गांधीज कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम? ऑप्शन 4, तालीमी संघ, ग्राम उद्योग संघ, काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन. ये तीनों तो गांधी जी ने प्रपोज किए ही थे. बट इंटर रिलीजन मैरिज एसोसिएशन ये गांधी जी ने नहीं बोला था. इट वॉज नॉट हीज प्रोग्राम. ओके. बेसिकली गांधी जी कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम वॉज अ कंप्रिहेंसिव प्लान फॉर इंडियाज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल डेवलपमेंट. तीनों भी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल डेवलपमेंट. ओके. तो इसी में उन्होंने तालीमी संघ, जो एजुकेशन सोसाइटी थी, तालीम वॉज एस्टैब्लिश टू प्रमोट एजुकेशन इन रूरल इंडिया. फिर ग्राम उद्योग संघ यानी कि रूरल इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती है, कॉटेज इंडस्ट्रीज इन विलेजेस टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट, और जो माइग्रेशन होता था उसे रोकने के लिए. और काउ प्रोटेक्शन, वो तो आपको समझ गया, काउ प्रोटेक्शन करने के लिए, गाय को बचाने के लिए. सो गांधी जी जो गाय को माता मानते थे, अभी भी हमारे रिलीजन में गाय को माता मानते हैं, काउ को. सो देयरफॉर उन्होंने काउ प्रोटेक्शन एसोसिएशन बनाया. बट ही डिड नॉट एस्टैब्लिश अ स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड इंटर रिलीजन ऑर्गेनाइजेशन. वो इंटरफेथ हार्मनी के बारे में, यूनिटी के बारे में बात करते थे, बट उन्होंने ये नहीं एस्टैब्लिश किया था. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन.
हु रोट धर्म तृतीय रत्न एक्सपोजर ऑफ द पुराणास? ऑप्शन 1 ज्योतिबा फुले. धर्म तृतीय रत्न द एक्सपोजर ऑफ पुराणास बाय ज्योतिबा फुले, अ सोशल रिफॉर्मर, एक्टिविस्ट एंड राइटर थिंकर. ओके, बेसिकली ये एक लो कास्ट वाली फैमिली से आते थे, माली कास्ट से आते थे, एंड देयरफॉर उन्हें काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था. ही स्टार्टेड हिज करियर एज अ टीचर एंड लेटर स्टार्टेड वर्क टुवर्ड्स द बेटरमेंट ऑफ ऑप्रेस्ड पीपल. एंड इन्होंने इसके लिए कौन सी सोसाइटी स्टार्ट की थी? सत्य शोधक समाज, सोसाइटी ऑफ सीकर्स ऑफ द ट्रूथ इन 1873. ओके, एंड फिर उन्होंने बाद में ये बुक लिखा है धर्म तृतीय रत्न, in which he criticized the caste system and exposed the myths and superstitions propagated by the Puranas. Okay? नाम में ही दिया गया है कि पुरानास को एक्सपोज किया है उन्होंने. He argued that this text were used by the upper caste people to maintain their dominance and oppress the lower caste. जो ये पुरानास है ये अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को सप्रेस करने के लिए यूज करते हैं. ओके, एंड देयर इज वन मोर फेमस बुक ऑफ ज्योतिबा फुले, इट इज गुलामगिरी, a book that criticized the practice of slavery in India. Okay, next question. Which of the following German scholars wrote extensively on Indian intellectual history without learning any Indian language? It is option 3 G.W.F. Hegel. G.W.F. Hegel इन्होंने लिखा हुआ है. ओके, जॉर्ज विल्हेल्म फ्रेडरिक हेगल 18th सेंचुरी में आते ही was a German philosopher who wrote extensively on the wide range of topics including religion, politics and history. Okay, so इन्होंने despite his lack of knowledge of Indian language, he relied heavily on the accounts of European travelers and scholars who had visited India as well as translation of Indian text. ठीक है, मतलब कि उन्होंने जो ट्रैवलर्स के बुक्स रहते थे, जो ट्रांसलेशन से होते थे बुक्स के, उनके ऊपर डिपेंड होकर उन्होंने स्टडी की है, लिखा है अबाउट द इंडिया की हिस्ट्री, रिलीजन, फिलोसॉफी, सब कुछ. ठीक है. He also saw India as a passive and static civilization that was incapable of making significant contribution to world history until it was transformed by European colonialism. ये स्टेटमेंट बोलना ज़रूरी था बिकॉज समझ में आता है कि इट वॉज अ कम्प्लीटली कॉलोनियल माइंडसेट, इम्पेरियल माइंडसेट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ इंस्पायर्ड द इमर्जेंस ऑफ साइको हिस्ट्री? सिगमंड फ्रेड. सिगमंड फ्रेड काफ़ी फेमस नाम है. क्यों है ये मुझे आप कमेंट्स में बताना. इनकी एक बुक है, बहुत बार रिपीट होती है इसके ऊपर क्वेश्चन, तो उस बुक के बेसिस पर ये काफ़ी फेमस है. साइको हिस्ट्री क्या है? बेसिकली इट इज़ अ फील्ड ऑफ स्टडी दैट कंबाइंस साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री. ओके, साइकोलॉजी एंड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल मोटिवेशंस एंड पर्सनैलिटी ट्रेट्स ऑफ हिस्टोरिकल फिगर्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस्ड हिस्टोरिकल इवेंट्स. बेसिकली उस टाइम के जो लीडर्स थे उनकी जो साइकोलॉजी थी उसको जानने के लिए होती है साइको हिस्ट्री. The term was coined by एरिक एरिक्सन. इन्होंने ये टर्म दिया था साइको हिस्ट्री. ओके, एरिक एरिक्सन ने ये टर्म दिया था, हु स्टडीड अंडर सिगमंड फ्रेड. ठीक है, बेसिकली थ्योरी किसकी थी ये? सिगमंड फ्रेड्स थ्योरी अबाउट द ह्यूमन साइकी एंड अनकॉन्शियस माइंड वेयर अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ साइको हिस्ट्री. ही बिलीव दैट अनकॉन्शियस डिजायर्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स कुड इन्फ्लुएंस कॉन्शियस बिहेवियर. कौन? फ्रेड, सिगमंड फ्रेड. And he applied this idea to study the historical figures. Okay? उन्होंने ये किसके ऊपर लगाई थी? एरिक्सन ने लगाई थी, ये अप्लाई की थी मार्टिन लूथर और महात्मा गांधी जी के ऊपर भी. ठीक है, बेसिकली जैसे कि जो अडोल्फ हिटलर, ऐसे जो भी पर्सनैलिटीज है, इनकी जो साइकोलॉजी है इसको जानने के लिए होता है साइको हिस्ट्री. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31. विच वन इज नॉट करेक्ट अबाउट लियोपोल्ड वॉन रैंके? नॉट करेक्ट. It is option 4. He was father of romanticism. दोनों तरफ से प्रोनाउंस कर लिया है. Many people उसे कीज़म पढ़ते हैं और कुछ लोग उसे सिज़म भी पढ़ते हैं. So he was the father of romanticism. No, he was not. So he played a leading role in establishing history as a respected discipline in the universities. Established the notion that all sound history must be based on primary sources. Yes, 2022 के वीडियो में हमने देखा था प्राइमरी सोर्सेज के ऊपर रहना चाहिए हिस्ट्री. एस्टैब्लिश द नोशन दैट ऑल साउंड हिस्ट्री मस्ट बी बेस्ड ऑन द रिगरस मेथोडोलॉजी. दिस 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. लास्ट वन इज नॉट. लियोपोल्ड वॉन रैंके, अ जर्मन हिस्टोरियन, एंड ही इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न हिस्टोरिकल स्कॉलरशिप. ओके, इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है इन द फील्ड ऑफ हिस्ट्री. हिस्टोरियन थे नहीं है.
he was not associated with romanticism. बेसिकली इनलाइटनमेंट वाला जो आइडिया है ये भी इनके थ्रू आता है. रैंकेज आइडियाज वेर मोर क्लोजली अलाइंड विद द इमर्जिंग ऑफ साइंटिफिक मेथड एंड द इनलाइटनमेंट. एम्फोसिस ऑन द रीजन. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द फर्स्ट टू स्पीक ऑफ पीजेंट रिवोल्ट्स अगेंस्ट द मुगल एम्पायर? ऑप्शन 1 W.C. Smith. Many of you have guessed Irfan Habib because he has written more extensively about medieval India and that to Mughal. But no, यहाँ पर है W.C. Smith, a Canadian historian who wrote extensively on Indian history, particularly the Mughal Empire. ठीक है. इरफान हबीब से पहले इन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया था. It is believed that he appeared to be the first to speak of peasant revolts against the Mughal Empire. Okay? ये कैसा उन्होंने किस तरह से कंक्लूड किया था? Peasant uprisings against the Mughal were documented by Abul al-Fazl and Badoni. जब वो उनके कोर्ट में आते थे उन्होंने इसके बारे में उनके बुक्स में लिखा है. बदौनी भी आते हैं एंड अबुल फजल एन अकबरी वाले. ओके. सो इट वॉज गिवन बाय दे. और फिर उसके बाद में जादूना सरकार ने इरफान हबीब ने भी, मैंने अभी से बोला है, इरफान हबीब उन्होंने भी काफ़ी एक्सटेंसिवली लिखा है अबाउट द मुगल एम्पायर. So these uprisings were often led by peasant and result of a combination of factors like economic grievances, social inequality and political instability. Okay. Next question. Question number 33. Who continued the writing of Rajat Tarangini after Kalhan? Question number 22. Video of 22 we have discussed about जोन राजा जिन्होंने सेकेंड रजत रागिनी लिखी हुई है, द्वितीय रजत रागिनी आफ्टर कल्हान. ओके. बेसिकली 7826 वर्सेस आते हैं जो फर्स्ट रजत रागिनी है कल्हान की उसमें. ओके. सो जोन राजा, 1 मिनट. जोन राजा कौन थे? अ कश्मीरी हिस्टोरियन. ओके. हु लिव्ड इन 14th सेंचुरी. कल्हान 12th सेंचुरी में आता है, जोन राजा 14th सेंचुरी में आते हैं. सो ही कॉन्ट्रीब्यूटेड एंड कंप्लीटेड इट अप टू द रायन ऑफ जैन उल अबिदीन. जो कश्मीरी रूलर थे जैन उल अबिदीन, उनके टाइम तक ये बुक लिखी गई है. फिर तृतीय रजत रागिनी भी आती है इसके बाद में. ओके. सो जोन राजा कॉन्ट्रीब्यूशन टू रजत रागिनी इज नोन एज रजत रागिनी क्रॉनिकल ऑफ किंग्स ऑफ कश्मीर and covers the period from reign of Harsha up to Zainul Abidin. हर्षा से लेकर Zainul Abidin and consists of 1427 verses. Okay. ये वाला जो है सेकेंड वाला उसमें पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी एंड फॉरेन इन्वेजन के बारे में दिया गया है. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 34. Which Sufi saint's hospice was on the banks of river Yamuna in Ghiaspur? यमुना के तट पर कौन थे? शेख निज़ामुद्दीन औलिया. दिल्ली में अभी भी इनकी टॉम्ब है. हॉस्पाइस यानी कि जो टॉम्ब या जो जगह वो रहते थे उसे हॉस्पाइस बोलते थे. ओके. शेख निज़ामुद्दीन औलिया 13th century, a prominent Sufi saint and scholar of Chishti order. So his family had a long tradition of Sufi scholarship and spiritual leaderships. And उनके mentor कौन थे? बाबा फरीद. He settled in Delhi and established his hospice कंखा ए निज़ामुद्दीन इन घियासपुर. ओके. और ये प्लेस पर सूफी लर्निंग, डिवोशन एंड सर्विस टू पुअर एंड नीडी. एंड निज़ामुद्दीन औलिया को के कौन मानते थे सबसे ज़्यादा? अमीर खुसरो. यस, अमीर खुसरो. इसीलिए अभी जो उनका न्यू सॉन्ग है सकल बन, जो हीरा मंडी मूवी से आया है, वो निज़ामुद्दीन से ही एसोसिएटेड है, शेख निज़ामुद्दीन से. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 35. Who among the following historians stated that Vijayanagar represented more the control of non-Tamils over Tamil country and a migration of Telugu warriors and peasants into Tamil Nadu? किसने बोला ये? ऑप्शन 2 बर्टन स्टेन. ओके. An American historian who specialized in the history of South India. So he was professor of history and his research focused on Vijayanagar Empire and the Deccan Sultanate. उनकी बुक का नाम क्या है? Peasant State and Society in Medieval South India. Peasant State and Society in Medieval South India. 1980 में आती है ये बुक. And argued that Vijayanagar
was not a Tamil kingdom but rather a state controlled by non-Tamils, namely the Telugu speaking. Okay. He also argued that Vijayanagar period saw a migration of Telugu warriors. बेसिकली उन्होंने ये बोला था कि विजयनगर एज अ तेलुगु डोमिनेटेड स्टेट चैलेंज द अर्लियर व्यू दैट इट वाज अ तमिल एम्पायर. पहले तमिल माना जाता था विजयनगर को, बट वो एक तेलुगु स्पीकिंग या तेलुगु स्टेट है. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन 36. Which sultan believed in close diplomatic, cultural and economic contacts with outside world? मोहम्मद बिन तुगलक. ऑप्शन 3. बहुत सारे कॉन्ट्रीब्यूशंस है, मोस्टली उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस फेल हो गए, बट येस ये काफ़ी ही वॉज वे अहेड ऑफ हिज टाइम, मतलब कि कुछ ज़्यादा ही दूर की सोच रखते थे वो. मोहम्मद बिन तुगलक MBT was the sultan who believed in close diplomatic, cultural and economic contact with the outside world. He sought to establish diplomatic relation with foreign powers and fostered cultural exchange. इनके टाइम पर एक एम्बेसी भी जाती है, कहाँ पर? चाइना में. ये क्यों करते हैं वो? टू प्रमोट ट्रेड एंड कॉमर्स. ओके. He was known for his interest in learning and his patronage of scholars, which contributed to the growth of literature, art and science during his time. Okay. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. द टर्म खुरक-ए-द्वाब stands for fodder for the beast. Option 4. Fodder for the beast. It is a Persian word. खुरक means food and द्वाब means domesticated animals. Okay. खुरक यानी कि खुराक, खुराक बोलते हैं ना, खुराक बहुत ज़्यादा है, खुराक बहुत कम है, तो फूड. एंड द्वाब यानी कि फॉडर, सॉरी कैटल्स, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स. ओके. ये दोनों वर्ड्स को हम अलग कर दिए. ये एनिमल्स को बोला जाता है एंड खुराक यानी कि फूड. सो इट वॉज प्राइमरी यूज टू फीड एनिमल्स इन रूरल एरियाज वेयर एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंडरी वेयर प्राइमरी. ठीक है. ग्रीन फॉडर, ड्राई फॉडर एंड कॉन्सेंट्रेट फीड, ये टाइप होते थे खुराक के फॉर एनिमल्स. चलिए आगे बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर 38. Who among the following Sikh gurus placed before his followers the ideal of household saint? Option 2. Guru Amar Das. Guru Amar Das ji, who was born in 15th century 1479. ओके. सेकेंड सिख गुरु होते हैं ये. सो इन्होंने ही हाउस होल्डर सेंट, जैसे कि माना जाता है कि संन्यास लेने वाले, तो ये इन्होंने बोला है गृहस्थ भी हो सकते हैं. ठीक है. गुरु अमरदास कॉन्ट्रीब्यूटेड 907 hymns in Guru Granth Sahib, Shri Guru Granth Sahib, gift of the prayer Anand Sahib, which is one of the 5 banis recited by Sikhs daily. ठीक है. फिर उन्होंने ऑल विजिटर्स के लिए गुरुद्वारा ओपन कर दिया था, लंगर फॉर ऑल. When Emperor Akbar visited the Guru, he too first sat as a commoner in the langar and then had a meeting with Guru. तो अकबर के कंटेम्पररी भी इन्हें माना जाता है, अमरदास जी को. He further abolished the caste system. Okay, lifted the status of women and gave them equality. सती की प्रैक्टिस भी इन्होंने प्रोहिबिट की है. एंड पर्दा सिस्टम जो था उसे भी प्रोहिबिट किया है. एंकरेज्ड विडो रीमैरिज. ऑल्सो ही एस्टैब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर मैनेजमेंट ऑफ सिख. मंजीस जिसे बोला जाता है. ही एस्टैब्लिश्ड द सिटी ऑफ गोइंदवल. ये एक पॉइंट नोट करो, सिटी ऑफ गोइंदवल. ऑन द रिवर बियास. 1552 में इन्होंने एस्टैब्लिश की थी ये सिटी गोइंदवल. ओके. ही प्लेस्ड बिफोर हिज फॉलोवर द आइडियल ऑफ हाउस होल्डर सेंट. ओके. एंड इनके बाद में कौन आते हैं? गुरु रामदास. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 39. Who asserted that there is no middle state in India? किसने बोला है ये? ऑप्शन 2. फ्रैंकोइस बर्नर, फ्रेंच फिजिशियन who visited during the reign of Emperor Aurangzeb, Mughal Emperor Aurangzeb. Okay. Bernier observed and documented various aspects of Indian culture, society and politics. और उन्होंने फिर ये स्टेटमेंट दिया था, there is no middle state in India.
मतलब देयर वॉज नो शार्प डिविजन बिटवीन द रिच एंड द पुअर. ओके, जो मिडिल क्लास होते हैं वो नहीं है यहाँ पर, ऐसा उन्होंने बोला था. या तो बहुत एक्सट्रीमली वेल्दी है या फिर बहुत ही गरीब है, पावर्टी, बिलो पावर्टी है. ठीक है. एंड व्हाट वाज द बुक नेम? ट्रैवल्स इन द मोगुल बोला इसमें, मोगुल एम्पायर. ट्रैवल्स इन द मोगुल एम्पायर 1656 to 1668. ओके, ये उनकी बुक का नाम है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. Who said film can open our minds to another more vivid and human, less literally understanding of the past? Option 4. Piri Sorlin. The film in the history, restaging the past or restagging the past. ये उनकी बुक है जिसमें उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है. The film in history, restaging the past, argues that film has the power to provide a unique perspective on history that is both vivid and human. Okay, यानी कि film have the ability to recreate past events, settings and characters in a visually compelling way. मतलब कि फिल्म में वो पावर है कि वो जो पास्ट के इवेंट्स है उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं. वी हैव मेनी मूवीज विच आर बेस्ड ऑन द हिस्ट्री. ओके, इंडिपेंडेंस, पार्टीशन, इंदस वैली से भी रिलेटेड मूवी है. सो बेसिकली ये मूवीज़ के बारे में स्टेटमेंट है बाय पायर सॉर्लिन. ऑप्शन 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, statements. So, which of the following are correct? Our correct answer is option 2, A, B, D, E. Karachi session of Muslim League adopted the slogan "Divide and Quit." Mutiny of the Indian naval rating began in February 1946 in Bombay. Correct. B.D. Savarkar was elected as the president of Hindu Mahasabha in 1938. Steel frame speech was delivered by Lloyd George. Okay. So Lord Mountbatten invited Nehru to form an interim government in 1946. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. ओके, इट इज़ इनकरेक्ट. किसको बुलाया था इंटरिम गवर्नमेंट बनाने के लिए? माउंटबेटन ने जिन्ना को, मोहम्मद जिन्ना को बुलाया था, नॉट नेहरू. ओके, बाकी के स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? सो आवर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 3, A, B, D. कनिष्क वॉज द फॉलोअर ऑफ महायान बुद्धिज्म. करेक्ट. उन्हीं के टाइम पर महायान और हीनयान डिवीजन होता है. बुद्धिस्ट काउंसिल महासंघा वॉज हेल्ड इन कश्मीर. करेक्ट. The stupa in Peshawar was constructed by chief architect Aghisala. Nagarjuna and Ashwagosha were contemporaries of Kanishk. We have seen कि नागार्जुना भी फर्स्ट सेकेंड सेंचुरी एडी के टाइम पर आते हैं, अश्वघोषा भी उसी टाइम पर आते हैं. दे बोथ वे कंटेम्पररीज. तक्षशिला वॉज बिल्ड बाय कनिष्क. ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है. तक्षशिला पहले से ही था, बिफोर कनिष्क. वी ऑल नो कि गांधार जो महाजनपद था उसका कैपिटल रहा करता था तक्षशिला. ओके, सो इट वॉज बिफोर कनिष्क. However, Kanishk patronized Takshila and it became a center of learning during his reign. Okay? All other statements are correct. Nagarjuna and Ashwagosha, prominent scholars and philosophers, were contemporaries of Kanishka and they were associated with the Mahayana Buddhism. Okay? Next question. Match करने हैं. So, our correct answer is option 2. सबसे पहले Journal Service Enlistment Act. It is 1856. Option B. Option 2. 1856. Religious Disabilities Act. 1850. Post Office Act. 1854. And then comes Indian Arms Act. 1878. ठीक है, ये सारे एक्ट्स है. रिलीजियस जनरल सर्विस इन्वेस्टमेंट एक्ट मेड इट कंपलसरी फॉर इंडियन सोल्जर्स टू सर्व ओवरसीज, जिसके बाद में ही आता है हमारा जो 1857 की म्यूटिनी है, वो इसी के अगेंस्ट ये एक रीज़न होता है उसके लिए. ठीक है. रिलीजियस डिसेबिलिटीज एक्ट 1850 जो कि abolished various civil and political disabilities imposed on Indian citizens professing the Hindu or Muslim religion. Then comes the Post Office Act जो कि था the Indian Post Office as a separate department, okay, under British government 1878. Then the Indian Arms Act control the possession, manufacture and sale and transport of firearms in India. Next question 44. With regard to the condition of music during the reign of Aurangzeb, which of the following statements are correct? Correct answer is option 1, A and B only. Fakirullah wrote musical treatise entitled Rag Darpan and Zebunisa, the daughter of Aurangzeb, was renowned patron of music. ये दो ही correct है. Naqshbandi abandoned music during Aurangzeb's reign.
No. Naqshbandi is a Sufi order that discouraged music, but there is no evidence to suggest that they abandoned. ठीक है, इसीलिए सी रॉन्ग है. देन मोहम्मद आजम गेव डेडली ब्लो टू म्यूजिक. मोहम्मद आजम कौन है? औरंगजेब के बेटे हैं. ही डिड नॉट गिव अ डेडली ब्लो. एंड ट्रैवेनियर डिडंट मेंशन अबाउट म्यूजिक. ट्रैवेनियर फ्रेंच ट्रैवलर, हाँ भी हाँ, वो औरंगजेब के टाइम पर आते हैं. ओके, बट ही डिड नॉट मेंशन एनीथिंग अबाउट म्यूजिक. वन मिनट. सो ट्रैवेनियर ने मेंशन किया है. ओके, ही मेंशनड इन हिज बुक द ट्रैवल्स इन इंडिया, which is the book of Travanier, Jean-Baptiste Travanier, a French merchant, the travels in India. In it he has mentioned. Okay, so Travanier और जो दूसरे वाले हमने अभी पहले जिनके बारे में पढ़ा था वो बर्नियर थे, फ्रैंकोइस बर्नियर, जो फिजिशियन थे, डॉक्टर थे. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following statements in respect of ICTA system are correct? So, which of the following statements are correct regarding the ICTA system? Our correct answer is 1 minute. Okay. Correct answer is option 1, A and D only. From the Ghaurian Empire, the ICTA system was directly inherited by the Delhi Sultanate, and Balban took certain steps to strengthen royal control over the ICTA. Okay, these two statements are only correct. बाकी के रॉन्ग है. सो गौरियन, मोहम्मद गौरी, उनके एम्पायर से आता है इक्ता सिस्टम डायरेक्टली, एंड इक्ता सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय घुरित्स. ठीक है. देन मिनाज सिराज तबकात नासिरी डज नॉट प्रोवाइड अस मच एविडेंस. ओके, 1 minute. डज नॉट प्रोवाइड अस मच विथ एविडेंस एज टू हाउ द इक्ता सिस्टम वर्क ड्यूरिंग द 13th century. तबकात नासिरी में तो इक्ता सिस्टम के बारे में काफ़ी अच्छे से इलेबरेट किया गया है, डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दी गई है. ठीक है. और शहाना और सुपरिटेंडेंट वॉज अपॉइंटेड इन ईच इक्ता. नो, हर इक्ता के लिए नहीं अपॉइंट किया जाता था. ठीक है. मुफ्त उसके लिए कौन रहते थे? मुक्ता रहते थे. और मुक्ता और इक्तादार वॉज अपॉइंटेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ इक्ता. शहाना नहीं होते थे, मुक्ता. देन कम्स बलबन टुक सर्टन स्टेप्स टू स्ट्रेंथन रॉयल कंट्रोल. येस, बलबन ने स्टेप्स लिए थे. बलबन टुक सेवरल मेजर्स टू स्ट्रेंथन द रॉयल कंट्रोल. And ICTA system was the replica of Persian administration? No, it was not. Instead, it was a system of land grants that originated in the Muslim world. Okay, next question. 46th. From among the following statements regarding the tomb of Akbar, which one are correct? Which are the correct statement regarding tomb of Akbar? Option 4, A, B, C, D. ठीक है. The tomb is a multi-storied structure. Jahangir completed its construction in 1614, 1614. The first 3 stories are pillared. The top floor is built of white marble, and the plinth of tomb has similarities with the tomb of Jahangir. जो E है वो wrong है. ठीक है. E statement is wrong. Otherwise all other statements are correct. tomb multi-storied है, तो उसी पर से जो C और D है ये भी कंफर्म हो जाते हैं. इट इज़ कंस्ट्रक्टेड बाय जहांगीर, और कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट होता है? 1614 में. 1605 से स्टार्ट होता है एंड 1614 में कंप्लीट होता है बाय जहांगीर हिज सन. फर्स्ट 3 स्टोरीज आर पिलर्ड. जो 3 मंजिले हैं वो पिलर्ड है. ठीक है. पिलर्स आर कार्व्ड विथ इंट्रिकेट डिजाइंस एंड पैटर्न्स विच आर टिपिकल टू मुगल आर्किटेक्चर. वो जो टॉप फ्लोर है मार्बल का बना हुआ है, विच मेक्स इट स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्ट्रक्चर. मार्बल से बना हुआ है. ठीक है. जो नीचे का है वो रेड सैंडस्टोन से है, बट जो टॉम्ब है जो अपर फ्लोर है वो मार्बल से बना हुआ है. ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. विथ रेफरेंस टू द मुगल स्टाइल ऑफ पेंटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? ऑप्शन 3. ठीक है. C and D are only correct. The earliest example of documentation are found during the period of Humayun. The imperial Mughal painters were from India, Persia and Central Asia. ये 2 स्टेटमेंट करेक्ट है, बाकी के जो थे वो रॉन्ग है. द इम्पेरियल पेंटिंग्स वेर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द प्रेफरेंसेज ऑफ मुगल एम्परर्स. कैसे बात है? ये तो कम्प्लीटली रॉन्ग है. जो प्रेफरेंस मुगल एम्परर्स के लिए था, बेसिकली वो काफ़ी ध्यान भी देते थे पेंटिंग्स के ऊपर. दे वेर पैट्रोन्स ऑफ मुगल पेंटिंग्स एंड हैड सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ऑन द स्टाइल एंड सब्जेक्ट मैटर ऑफ द पेंटिंग. मतलब कि क्या रहेगा उनके ड्राइंग में, ये सब कुछ वो बताते थे. ठीक है. बाबर हैड एस्टैब्लिश्ड अ वर्कशॉप फॉर पेंटिंग. बाबर करते हैं क्या? हुमायूं. ओके. हुमायूं एस्टैब्लिश्ड अ वर्कशॉप. देन अर्लीस्ट डॉक्यूमेंटेशन
आर फाउंड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ हुमायूं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक है. इट वॉज हुमायूं हु वॉज लवर ऑफ आर्ट and had established a workshop and had first documented. Okay, then जो टी है वो भी करेक्ट है. मुगल पेंटर्स वे फ्रॉम इंडिया, पर्शिया एंड सेंट्रल एशिया. हुमायूं वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेबरेशन. हुमायूं रिस्पॉन्सिबल है क्या इसके लिए? नो. हुमायूं वॉज अ ग्रेट पैट्रॉन बट ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेबरेशन. इट वॉज अकबर. अकबर के टाइम पर इलेबरेट होता है मुगल पेंटिंग्स. ओके, एंड इसका क्लाइमैक्स कब आता है? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जहांगीर. Question number 48. Which one of the following statements are correct about money and prices during Delhi Sultanate? Correct answer is option 1. The establishment of Delhi Sultanate marked rapid changes in money circulation. Before the establishment of Delhi Sultanate, the common coinage of Punjab and Delhi regions were called Dehelvi. ये टर्म ना ध्यान में रखो. देहलवी तो लैंग्वेज के लिए. Then option D, the earlier coins of Punjab and Delhi regions are mentioned in Qutub Mosque inscription circa 1198. ठीक है, ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है. बाकी के जो 2 है वो रॉन्ग है. इल्तमिश इंट्रोड्यूस कॉपर मेड तंगा ऑफ अबाउट 170 ग्रेन्स. 170 नहीं है, ये 175 है, काफ़ी पास में है, बट यस इट इज़ अ रॉन्ग स्टेटमेंट. देन द गढ़वाल्स ऑफ कनौज इशूड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गोल्ड कॉइन्स बियरिंग द इमेज ऑफ सरस्वती. सो ई वाला स्टेटमेंट भी रॉन्ग है. दे डिड नॉट इशू कॉइन्स बियरिंग द इमेज ऑफ सरस्वती. ओके, कौन से डेटीज को उन्होंने डिपिक्ट किया है? विष्णु एंड शिवा, नॉट सरस्वती. गोल्ड कॉइन्स उन्होंने भी इशू किए बट ऑफ विष्णु, लॉर्ड विष्णु एंड शिवा. ओके, ठीक है. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 49. Akbar inherited a large range of artillery that included the following. Correct answer is option 2, A, B, C and E. So, Tufang, Top, Deg and Zarbazan. Okay, ये artillery, arms वगैरह जो होते हैं, a range of artillery was introduced by Mughal armies. जो cannons, muskets ये सब भी उसी टाइम पर आते हैं. तो तूफान क्या है? एक टाइप का कैनॉन होता है. ओके, स्मॉल एंड लाइट वेट. तोप पता है आपको, जो ऑल्सो नोन एज तोपखाना, लार्जर कैनॉन. यस, कैनॉन ही होता है, काफ़ी प्रिवेलेंट है, अभी भी इंडिया में दिखता है. वॉज इट यूज टू अटैक फोर्टिफिकेशंस. बड़े सारे होते हैं जिसमें तोप गोले डालते हैं एंड दे आर शॉटेड ऑन द फोर्ट्स. ओके, देग वॉज अनदर टाइप ऑफ कैनॉन यूज ड्यूरिंग द मुगल पीरियड. इट वॉज हैवी एंड कम्बरसम वेपन. देग बहुत ज़्यादा हैवी रहता था एंड रिक्वायर्ड अ टीम ऑफ सोल्जर्स टू ऑपरेट. देन कम्स द जरबजान, a type of musket. ठीक है, स्मॉल एंड लाइट वेट वेपन दैट वॉज हाईली इफेक्टिव एट अ शॉर्ट रेंज. भुईतात क्या है? ये नहीं मेंशन किया गया है. इट इज़ नॉट मेंशन. इट वॉज अ वेपन जो होगा उस टाइम पर बट डॉक्यूमेंट में नहीं दिया गया. ओके, टाइप ऑफ वेपन यूज्ड इन स्पेसिफिक रीजन बट इट इज़ नॉट वेल नोन. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 50. Bayezid Roshan exhorted the Sufi path and urged the pursuance of 8 steps. Which of these are included in the list given below? Bayezid Roshan. ठीक है, चलिए करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ऑप्शन डी, ऑप्शन 4, ABCDE. शरीयत, तरीकत, हकीकत, मरीफत, वसलत. ओके, ये सब. So who was Bayezid Roshan? A renowned Sufi saint and scholar who lived in 17th century in Pakistan. ठीक है, known for his teaching on Sufi path. So शरीयत फर्स्ट स्टेप है. इट रेफर्स टू द इस्लामिक लॉ. वी ऑल नो शरीयत जो इस्लामिक लॉ है विच लेज डाउन द रूल्स एंड रेगुलेशन फॉर मुस्लिम. तरीकत, स्पिरिचुअल पाथ ऑफ सूफिज्म. ओके, बेस्ड ऑन द टीचिंग्स ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद एंड कुरान. देन हकीकत, इनर ट्रूथ ऑफ इस्लाम, रियलाइजेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ गॉड. मरीफत यानी कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ गॉड. ओके, एंड वसलत, रीचिंग अ स्टेट ऑफ यूनियन विद गॉड. ओके, ये 4 है और ये 5 है among the 8 steps. So with this we conclude the part 1 of February 2023 video. Do like, share and subscribe, and yes, do watch part 2 also. It will be uploaded after this. Thank you for watching. Do like, share and subscribe.